Class, am I audible? Uh, yeah, okay. I think again there was some network glitch. I had to connect it through my mobile now. There is some issue with the college network. Yeah. So where were we? Uh, yeah, I had to present also. Now is the screen visible to all of you? Yes. Okay. So now you can see this is your pulse timer. Okay, a very single type of timer which is TP. Now you can see the timing diagram of this particular timer. Okay, earlier what we have seen is how we can get an logic through P trigger, how we can get a logic through your P scan output. Okay, now let us see about the pulse timer. Now what pulse timer will do? Now you can see that this is the input signal and this is the output signal. Just kindly focus on the kind of output that you are getting. So again, this timer is going to trigger activate through a positive trigger. Whenever there will be a positive trigger, it will provide an output. In the previous results, they were just providing you a pulse. Both P trigger and P scan were providing you just a single pulse. Okay. Whereas in this particular case, you are going to get a continuous signal for a preset time which has been preset. So you can have 24 days, 20 hours, 31 minutes, 23 seconds, 6. My bad. I think there is some serious network issue. Uh, Class, am I audible to you? Is the screen visible?
Is my screen visible now? Okay. So, okay, I will just repeat the timer. Okay, I will just repeat it one more time. No issues. Yeah. So in this particular, let me just do one thing. Uh, Keep you all in the chat box, so I could get the status of the. Yeah. So now you can see for any particular example, if there is a positive edge, your output will work for a particular preset time. And this is a preset time which is defined t hash 1 second. So the preset time is 1 second. So even if your input continue to work for a longer time, it is just going to detect your positive edge and work for 1 second. So once it is for a longer time or a shorter time than a 1 second, it doesn't matter. Your timing will be only for 1 second. Even if you get a positive edge in between, it is not going to detect that until and unless its preset time is over, which is 1 second in this particular case. Okay, I think you understood this. This is easy. Now let us look at an example. Okay, if there is any technical glitch or network issue, you can also respond me on WhatsApp. I am available on WhatsApp also. Okay, because I am using it from through my mobile network, there are some issues with the college network. Therefore, I am using my mobile network. You can WhatsApp me on the group that there is a technical glitch, but kindly focus on the next example. This is important because it consists of your end scan and your RLO also. Okay na? So you have your operand also, you have your RLO also. You can understand the entire concept that why we were dealing with this scan RLO and scan operand, and how we can convert a pulse timer, and how a live example can be extracted from these basic you can say logics. Okay, now let us have a focus on this particular example. Write a logic to generate continuous pulse output at Q0.0. Consider pulse time to be 1 second. Okay, so our output will be in such a manner. Let me use red color. So for 1 second, it will be on. After 1 second, it will be off. 1 second, it will be on. 1 second, it will be off. Okay, something like this. Just kindly focus on what I am going to convey to you. Okay, so when it will be initiated, when you have I0.0, which can be any kind of switch, and you have just pressed that button. So what will happen? By pressing the condition of I0.0, you will get a start here, you will get a positive edge, and a pulse will be provided here. Now you can see that your flow is flowing from this particular direction, but this flow is not going to move forward because this N is not your RLO, this is your operand which works on a particular address of Q0.0. Okay, it does not relate to the flow, it relate to the address of a particular byte that has been given it to it. So it will not provide a pulse until and unless it gets a negative trigger from the output Q0.0, and it does not relate with the flow. Okay, in the similar manner here, you will get a particular kind of current from here. Okay, but it will not provide a particular pulse until and unless it is getting a positive edge from I0.0. Okay, if you have any doubt, you can clear me by unmuting yourself. Okay, now
This was for an instant that when you have started, you have given a initiation to your I0.0. Okay, this pulse will travel in microseconds. Okay, and this pulse will go to this. Now this is your TP, and your TP is this. Even a single pulse can activate it for 1 second. So the output from here will be for 1 second, and your Q0.0 will be illuminated for an entire 1 second. Okay. Now after 1 second, what will happen? There is no further trigger. In TP, it will be 0 again. So your output of Q0.0 is going to be 0 again. Now at this particular moment, when you have a negative edge, we have not continued to it. Even if there is a negative edge for a Q0.0, there is a change of state from 1 to 0. Excuse me. For an output Q0.0, and this negative scan operand is working on the address of Q0.0. Therefore, it will provide a particular pulse, because this negative trigger is getting the command from the address bit of Q0.0 that whenever there will be a negative edge in a Q0.0, you will provide a pulse. Okay, so for that particular time, that pulse will be provided. Okay, now what will happen? This is again a timer. Okay, but this had happened instantaneously. Okay, now you can see about this timer. What will happen? Instantaneously, this pulse will be going to travel to TP. Okay, now a timer of 1 second is there. This is 1000 milliseconds. This is denoted as like this only. For 1 second, you will get a flow of current. So your output will be for 1 second, not for a pulse. Let us use for an impulse. Let us not use this. Let us use this kind of signal. So for an impulse, let us use this kind of signal. Okay, this kind of signal. Okay, so we had this. It will send an impulse, and that impulse, now what will this impulse do? It will provide a pulse of 1 second. A pulse of 1 second, because it will operate for 1 second. Now AND trigger works with the flow. It does not work with a particular address. Now this flow have been moved from 0 to 1, and after 1 second, it will move from your say 1 condition to 0. So you have a 1 second time. This 1 second time, this lamp is not working and is not illuminated for this particular one. Okay, and this will be 0. So we have this 1 second time, and with this 1 second time, for this 1 second time, your Q0.0 is not activated. Okay, now after 1 second, there will be a negative edge which will be triggered by this, and this AND trigger is going to send a clock cycle or a for single clock cycle and impulse. Instantaneously, this impulse is going to be fetched into DB2. Okay, now in DB2, you have a timer which will work for 1 second. Okay, and you will have a flow of current for a complete 1 second. Okay, again, after 1 second, there is no impulse passing. It will be 0. It will be 0. Okay. After, if it is 0, again a negative trigger
is going to provide an edge here. Okay, because of this negative trigger you will get an impulse. This impulse is going to activate this will start working for 1 second. 1 second there will be no power, no output for Q0.0 for entire 1 second. After a negative edge has been detected in this particular flow by end trigger, okay, it will provide a pulse. This pulse will pass through your TP timer, and from your timer your output will get a particular flow like this. Oh, sorry, my bad, this is not like this. Yes. So your continuous signal will be like this: on, off, on, off, on, and off. So should I repeat it, or you understood this? Class, I proceeded with a very low pace. Only Nayan, Ritik, yeah. Yes. So earlier it might be looking like a tough thing, that what is the difference between your P operand and your P scan RLO. Now you understood why it is important to have two different kind of signals and how we can change a particular logic. Now is the vision of completing all this exercises completed? Kindly respond on the check box. आई थिंक अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, मतलब एक छोटे छोटे लॉजिक को हमने डिफरेंट भी क्यों किया है, क्योंकि हमको एक बड़े लॉजिक में अगर इंटीग्रेट करना है तो हर एक टाइप के लॉजिक का. या हितेश इज सेइंग टू रिपीट. ओके हितेश, आई विल रिपीट because even as if a single student is, yeah, Shubham is also saying that sir last slide को repeat कर दी. ठीक है, मैं फिर से repeat कर दे रहा हूँ. जिन लोगों को समझ में आ गया, वेरी गुड, बट लेट अस रिपीट. इट्स ओके, मैं इसको दोबारा रिपीट भी करते रहा. थोड़ा रिपीटेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग भी दोबारा इसको देख लो, क्योंकि आपको इसको असाइनमेंट में भी बनाना ही है. मैं एक बार फिर से बताता हूँ, कोई इशू नहीं है. मैं बहुत ही छोटी स्पेस से आपको बताना शुरू करूंगा. अगर कोई भी डाउट हो आप अनम्यूट करके मुझसे तुरंत पूछ सकते हो. ठीक है, कोई इशू नहीं. देखो, लेट मी यूज अ रेड कलर. हमको यहाँ पे ये लैडर लॉजिक में Q0.0 का आउटपुट देखना है. हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं कि क्या आउटपुट रहेगा. अभी हमको पता ही नहीं है कि आउटपुट क्या रहेगा. ठीक है, ये जो इम्पल्स होती है जो जाती है एक ट्रिगर से होकर के, ये एक क्लॉक साइकिल की होती है. और एक क्लॉक साइकिल आपकी कितने टाइम की होती है? मिली सेकेंड्स की भी नहीं होती वो. ठीक है ना, क्योंकि मेगा हर्ट्स में अगर आप चले जाते हो प्रोसेसिंग स्पीड में, वो मिली हर्ट्स की भी नहीं होती. लेकिन हाँ, एक पूरा प्रोग्राम अगर थोड़ा बड़ा भी है तो भी वो मिली सेकेंड्स में रहेगी. ठीक है ना, तो मतलब 1000th फ्रैक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, तो वो बहुत छोटी इम्पल्स जाएगी. ठीक है, पहली चीज. अब मान लीजिए कोई स्विच है, मान लीजिए कोई पुश बटन है. ठीक है ना, ये पुश बटन है. पुश बटन को मैं जैसे ही दबाऊंगा, ठीक है ना, ऑन, पुश भी नहीं, मान लीजिए एक टॉगल स्विच है. I0.0 एक टॉगल स्विच है. ठीक है ना, और मैंने इसको ऑन कर दिया. कोई बाहर से इनपुट आ रहा होगा, मैंने इसको ऑन कर दिया. ऑन करने का मतलब क्या है? I0.0 की स्टेज अब 0 से 1 हो चुकी है. I0.0 की स्टेज जो थी वो 0 से 1 हो चुकी है. I0.0 की इनपुट की. ठीक है ना, मैं अभी और किसी चीज की बात नहीं कर रहा. जैसे ही I0.0 की स्टेज 0 से 1 हुई, आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये है आपका पॉजिटिव स्कैन ऑपरेंड. पॉजिटिव स्कैन ऑपरेंड क्या करता है? उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी फ्लो कैसी है,
उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी फ्लो लाइन स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि उसको एक एक्टिवेशन करंट चाहिए, लेकिन आप उसको मत देखो इनिशिएशन, आप केवल ये देखो, इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से फ्लो आ रहा है क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। इसको केवल मतलब है, इसको जो एड्रेस दे रखा है एक्टिवेशन का I0.0, ठीक है ना, इसको केवल मतलब है कि इसको जो एड्रेस दे रखा है एक्टिवेशन का I0.0, उसमें पॉजिटिव एज है या नहीं है। तो जैसे ही आप इसके स्विच को ऑन करोगे, ये फ्लो हो जाएगा, कंटिन्यूअस फ्लो मिल जाएगा, ये क्लोज सर्किट हो जाएगा और आपको 0 से 1 का एक कंटिन्यूअस फ्लो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मिल चुकी है एक पॉजिटिव एज। जो ये पॉजिटिव एज है वो पॉजिटिव एज ये डिटेक्ट कर लेगा और इसके डिटेक्शन की वजह से ये एक इम्पल्स दे देगा, और ये इम्पल्स ट्रेवल तो माइक्रो सेकेंड में होगा, और वो माइक्रो सेकेंड में अभी तक माइक्रो सेकेंड में ही है हम, अभी तक हमने बस स्विच को ऑन ही किया है इस टाइम पे, ठीक है ना। अभी हम उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही बात कर रहे हैं। तो जस्ट स्विच ऑन करोगे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, इम्पल्स आएगा, इम्पल्स टीपी के पास जाएगा, ये हमारा टाइमर है। टाइमर आप देखो तो जैसे ही कोई भी काइंड ऑफ इम्पल्स मिलेगा, पॉजिटिव एज ही है इम्पल्स, इम्पल्स तो एक पॉजिटिव एज ही है ना, क्योंकि स्टार्ट तो वो पॉजिटिव एज के साथ ही होगा ना, है ना। तो जैसे ही आपको वो इम्पल्स मिला, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट तो पॉजिटिव एज की तरह ही होगा, आपको क्या मिलेगा, प्रीसेट टाइम तक आउटपुट मिलेगा। प्रीसेट टाइम आपका 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे जो क्यू है ये पॉजिटिव कितनी देर के लिए रहेगा, प्रीसेट टाइम जो कि 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, आपका Q0.0 की स्टेट क्या रहेगी, 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक, मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ। तो ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड तक आपको इसका आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये आपको पूरे 1 सेकेंड तक इसका आउटपुट पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही इसका आउटपुट पॉजिटिव मिला, ठीक है, 1 सेकेंड के बाद इसको और कोई इनिशिएशन तो अभी मिला ही नहीं है, और तो कुछ इसको मिल ही नहीं रहा। अब क्या होगा, 1 सेकेंड बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि टीपी में हमारा क्या होता है, जितना प्रीसेट टाइम होता है उतने तक ही पॉजिटिव रहता है, उसके बाद पॉजिटिव से 0 पे फिर से आ जाता है। भले ही आपका इनिशिएशन कितना भी लंबा हो, कितना भी बाहर हो बीच में, और कितना भी छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार पॉजिटिव एज इसने डिटेक्ट करी तो 1 सेकेंड के बाद ये बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मिलता है जब साइकिल खत्म हो गई, तो ये फिर से स्टार्ट हो सकता है, बीच में नहीं स्टार्ट हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये 1 सेकेंड तक ट्रैवल किया यहां तक, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव एज आई Q0.0 की, यहाँ पे आपका n ऑपरेंड है, ठीक है ना। इसको एड्रेस दिया हुआ है हमने Q0.0, यहाँ पे हमने जो एड्रेस दिया था वो दिया था I0.0, यहाँ पे हमने जो एड्रेस दिया हुआ है वो दिया हुआ है Q, आउटपुट का एड्रेस दे रखा है Q0.0। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव एज आएगी, यहाँ से ये नेगेटिव एज को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ से एक तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में एक इम्पल्स दे देगा। इम्पल्स अगेन अगर आप इम्पल्स को देखो तो होता तो वही है कि पहले एक पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, लेकिन स्टार्टिंग तो पॉजिटिव से ही हुआ है। इसका मतलब क्या है, टाइमर के पास अगर ये इम्पल्स जाएगा तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव फ्लो मिलेगा, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, कितने सेकंड का, प्रीसेट टाइम का, जो कि दे रखा है 1000 मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का। तो ये जो इम्पल्स टाइम है आपको, ये कितने सेकंड का मिला है, 1000 मिली सेकेंड का, यानी कि 1 सेकेंड तक ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इसके आगे अभी कुछ भी नहीं जा रहा, क्योंकि एंड ट्रिगर लगा हुआ है। इसको जब तक नेगेटिव ट्रिगर नहीं मिलेगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि जब तक इसको 0 से पॉजिटिव और पॉजिटिव से व्हाट वी से कंटिन्यूअस 1 सेकेंड तक पॉजिटिव रहेगा,
तब तक यहाँ कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपके क्यू को तो कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा, ये कंटिन्यूअसली नेगेटिव रहेगा 1 सेकंड तक। तो जो ये 1 सेकंड यहाँ आपको कंटिन्यूअस फ्लो मिल रहा है, ठीक है, तब तक के लिए ये क्या रहेगा, 0 वैल्यू पे। क्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इस Q0.0 की स्टेट है ये, ठीक है ना, टाइमर टीपी की स्टेट नहीं है, ठीक है ना। अब हम फिर देख लेते हैं ठीक है। अब जैसे ही नेगेटिव एज मिली यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव एज आई है, जैसे ही इसको नेगेटिव एज मिली, इसने यहां से, अब ये एंड ट्रिगर है, ये आपका क्या था, ये आपका आरएलओ है, ये आपका ऑपरेंड है, मतलब ये आपकी किसी एड्रेस से कमांड ले रहा था, ये आपकी फ्लो से कमांड ले रहा था। तो फ्लो में नेगेटिव एज आएगी तो ये इसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद एक इंपल्स है फ्लो में कमांड आने के बाद। यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे लैंप से कमांड आ रही, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लो से कमांड आ रही है। जब फ्लो पे नेगेटिव एज आया, जब इनपुट के फ्लो पे नेगेटिव एज आया, तब इसने इंस्टेंटेनियसली एक व्हाट वी से इंपल्स भेजा यहाँ पे, जो 1 सेकंड तक के लिए प्री ट्रिगर्ड था। अब जब एक इंपल्स मिल गया, इंपल्स मिलने का मतलब क्या है, यहाँ से आपको फ्लो मिलने लग गया, कितने सेकंड मिलेगा, वो प्रीसेट टाइम। तो प्रीसेट टाइम क्या है आपका, 1 सेकंड। ओके, सो लेट अस से 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। अब अगेन नेगेटिव एज, वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल गेट द इंपल्स। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट और है तो मैं आपके लिए एक चीज और कर देता हूँ यहाँ पे, लेट मी यूज एन अनदर कलर पेन, और मैं आपको इसके आउटपुट का डायग्राम भी बता देता हूँ, ठीक है ना। आपके पास दो टाइमर है ना, TP1 TP2, ठीक है ना। तो इसके जो फ्लो आउटपुट आएंगे वो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं, TP1 को तो ऊपर बनाता हूँ, यूज करूंगा दूसरे कलर का पेन यहाँ पे, और ये जो DB1 है और DB2, मैं इन दोनों को बना देता हूँ, ठीक है। आपको आउटपुट भी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें एक साथ ही समझ में आ जाएंगी। लेट मी यूज से दिस इज योर DB2 TP, ठीक है। DB2 के लिए जो Q आउटपुट आए, Q आउटपुट की बात कर रहा हूँ मैं, और ये आपका DB1। लेट मी यूज ब्लैक कलर। तो पहले DB2 का देख लेते हैं। जिस इंस्टेंट पे इस पे पल्स आया था, ठीक है, उसी इंस्टेंट पे इसने स्टार्ट कर दिया था पॉजिटिव। तो जो DB2 का आउटपुट होगा, जो DB2 का आउटपुट होगा वही Q का आउटपुट होगा, वो तो बहुत क्लियर सी बात है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव आ रहा था तो Q0.0 को पॉजिटिव मिल रहा था। जब यहाँ से बंद हो गया तो यहाँ से भी बंद हो गया Q0.0, इसका आउटपुट ही तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो DB2 और इनका आउटपुट तो सेम रहेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था Q0.0, तब यहाँ पे तो कोई सिग्नल आया नहीं था, है ना। तो ये तो आपका जो DB1 था वो 0 था, ठीक है। मतलब जब इनिशियली आपको I0.0 से पॉजिटिव ट्रिगर मिला, ये ट्रिगर आया, ये ट्रिगर 0 सेकंड पे ही आ गया था, यहाँ से आपको ये ऑन होने लगा। उस टाइम पे ये डॉर्मेंट स्टेट में था, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था, तो यहाँ पे तो ये TP 0 था। अब जब यहाँ पे 1 सेकंड बाद आपको आउटपुट मिल गया 1 सेकंड का, Q0.0 को 1 सेकंड का आउटपुट मिल गया, नेगेटिव ट्रिगर ने नेगेटिव स्कैन ऑपरेट, यहाँ पे नेगेटिव एक एज आई, वो नेगेटिव एज को डिटेक्ट किया, या नेगेटिव एज ऑपरेंड ने, इसने एक पल्स दी, और उस पल्स के तुरंत बाद ये एक्टिवेट हो गया, और चला ये कितनी देर तक, पूरे 1 सेकंड तक। ये 1 सेकंड तक चलने के बाद डाउन हो गया। ये जैसे ही डाउन हुआ, इसकी नेगेटिव एज फ्लो में आई, फ्लो की नेगेटिव एज इसने ट्रिगर करी, इसने इंपल्स दी यहाँ पे, यहाँ से ये जो इंपल्स आई वो इंपल्स इसको ऑन करने लग गई,
और टीपी ऑन ऑन हो गया, टीपी ऑन ऑन होने की वजह से आपका Q0.0 ऑन हो गया, Q0.0 ऑन होने की वजह से, ठीक है ना, आपका ये कंटिन्यूअस ऑन रहा, यहाँ पे आपका जो जीरो था वो जीरो का जीरो कंटिन्यूअस चलता, क्योंकि यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। अब जैसे ही ये नेगेटिव एज डिटेक्ट हुई यहाँ पे, फिर से आपकी नेगेटिव एज ने एक इम्पल्स दिया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मैं फिर से एक पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आई नो कि आई एम अ लिटिल बिट रिपीटेटिव, लेकिन आपको एक प्रोसेस पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको इस चीज का, ठीक है ना। कोई स्विच था, ठीक है, आपने स्विच को ऑन किया, ठीक है, टॉगल स्विच था, उसकी स्टेट हमेशा के लिए 0 से 1 होगी जब तक आप इसको वापस ऑफ नहीं करोगे। जैसे ही 1 हुई, आपने यहाँ से करंट पास हो गया, लेकिन I0.0 की स्टेज जो थी, ठीक है ना, यहाँ से भी करंट फ्लो हुआ, यहाँ पे आके रुक गया, आगे कुछ नहीं जा रहा, यहाँ पे भी आके रुक गया है, अभी कुछ नहीं जा रहा, यहाँ पे केवल एक पल्स जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि I0.0 की एक पॉजिटिव एज डिटेक्ट कर ली इसने यहाँ पे एक पल्स दी, ये पल्स यहाँ पे रीच हुई, यहाँ पे जैसे ही पल्स आई यहाँ पे जैसे ही पल्स आई, टीपी टाइमर ने 1 सेकेंड के लिए ऑन हुआ, प्रीसेट टाइम तक ऑफ हो गया। इसकी वजह से इसके आउटपुट में 1 सेकेंड तक ऑन रहा, ऑफ रहा, Q0.0 भी ऐसे कैसे गया। यहाँ पे जैसे ही एक नेगेटिव एज आई, नेगेटिव एज को डिटेक्ट किया, एक किया, पल्स फ्लो होने की वजह से टीपी टाइमर DB1 वाला 1 सेकेंड के लिए ऑन हो गया। उसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा था। 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे नेगेटिव एज आई, फ्लो के अंदर जैसे ही नेगेटिव एज आई, वैसे ही एंड ट्रिगर ने देखा कि नेगेटिव एज आ गई है, उसको डिटेक्ट किया, उसने एक पल्स दे दी आपके टीपी को, ठीक है। when the pulse was provided to TP, when this particular pulse was provided to TP, now you can see that this TP has started for 1 second, one more, okay, this, because of this you get an output of 1 second, and after this particular output, this will again stop, you will get a negative edge will be detected here, and you will have a continuous 1 second logic, which will be continuous pulse output of 1 second will be obtained to you. I think now it is very much clear. या अभी भी किसी को डाउट है? Just let me interact with you guys. अब तो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्लियर आ गई होगी। क्लास काइंडली रिस्पॉन्ड। इससे स्लो पेस तो नहीं हो सकता है, ठीक। Yes. So I think now you all are aligned to ladder logic. अब आपको पता है कि स्कैन ऑपरेंड और स्कैन आरओनो में क्या डिफरेंस है। और तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारा स्कैन ऑपरेंड होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको नाम याद नहीं होगा अभी। ये जो P है, दिस इज योर स्कैन ऑपरेंड। मुझे ये बताइए, ये जो स्कैन ऑपरेंड है, ये फ्लो से एक्टिवेट होता है, फ्लो के पॉजिटिव होने से एक्टिवेट होता है, यस और नो? नो, नो, ठीक है। इसको जो एड्रेस दिया होता है, इसको जो एड्रेस दिया है, अगर वो एड्रेस पॉजिटिव है तो ये एक्टिवेट होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसको कोई एड्रेस दिया हुआ है, अगर वो एड्रेस पॉजिटिव है तो वो एक्टिवेट होगा। नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तब वो एक्टिव होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
Again, my question to you is, this is your end trigger RLO. ठीक है, अगर आपका एंड ट्रिगर RLO, ठीक है, अगर उसका फ्लो पॉजिटिव है, फ्लो एक पॉजिटिव है, तो वो ट्रिगर होगा। एंड ट्रिगर RLO में अगर फ्लो पॉजिटिव है तो वो ट्रिगर नहीं होगा, अगर वो फ्लो नेगेटिव है तो वो ट्रिगर होगा। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एंड ट्रिगर एक फ्लो से अटैच्ड है, अगर वो फ्लो नेगेटिव है तो वो एक्टिव होगा। अगर वो फ्लो जीरो है तो वो एक्टिव होगा नहीं, अगर वो फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, नेगेटिव एज अगर उसको डिटेक्ट होती है, तब वो जाकर के एक्टिव होगा। एक और वो एक्टिवेशन किस टाइप का होगा, कंटिन्यूस होगा या एक इम्पल्स टाइम का होगा, एक क्लॉक साइकिल का होगा। इम्पल्स टाइप का होगा। ठीक है, अगर आपका टाइमर है, फॉर एग्जांपल ये आपका जो मैंने जो आपको बताया, ये अभी टीपी टाइमर ही बताया है, बहुत काइंड के टाइमर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। इसको अगर हमने एक पॉजिटिव एज दी, मान लीजिए 10 सेकेंड की, और प्रीसेट टाइम है इसका 5 सेकेंड का, तो इसका आउटपुट कितनी देर के लिए पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अगर प्रीसेट टाइम 5 सेकेंड ही है, लेकिन मैंने उसकी जो इनपुट दिया है उसको मैंने केवल ऑन रखा है, जीरो स्टेट से ऑन कर दिया था, और ऑन केवल 2 सेकेंड को रखा था, तो आंसर, अच्छा आपने क्वेश्चन से पहले ही बता दिया, गुड। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि टीपी टाइमर को मैंने ऑन किया था, ठीक है, उसका प्रीसेट टाइम है 10 सेकेंड का, लेकिन मैंने क्या किया कि 5 सेकेंड तक एक इनपुट दिया था, उसके तुरंत बाद मैंने एक और इनपुट दे दिया 5 सेकेंड का, तो टीपी टाइमर कितनी देर तक ऑन रहेगा, उसका प्रीसेट टाइम 10 है। भानु भी 10 ही लिखना चाह रहा था, उसने 1 लिख दिया जल्दी जल्दी। ओके, आई अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया है। आई थिंक यू आर नाउ अलाइंड। अब आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा, क्योंकि पूरे सेशन में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल से आपको रिलेशन समझ में आ गया कि हाँ कैसे रिलेट हो सकता है। और ये बहुत ही छोटा एक इंडिकेटर का ही लैडर लॉजिक है, समझ गए ना आप? एक वेरी सिंपल इंडिकेटर के लैडर लॉजिक को आप ऐसे बना सकते हो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये, क्योंकि इंडिकेटर के लैडर लॉजिक अगर आप बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, सारे लोग प्रेजेंट हैं। ओके ओके ओके, सो शेल वी स्टॉप नाउ और शेल वी कंटिन्यू। आज के लिए मेरे ख्याल से आपका आउटकम जो मुझे देना था, मैं वो आउटकम देने में सक्सेसफुल रहा। ओके ओके, बट आज का पूरा जो टोटल आउटकम है, आप में आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कन्वे इट टू मी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन में कंप्लीट होने की। पूरे सेशन में एक अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से कुछ लेके जाओ, दैट इज द मेन मोटिव। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो। टुमारो भी हम थोड़ा सा ऐसा ही होगा कि बीच का सेशन थोड़ा हैवी रहेगा, लास्ट में एक आउटकम जो निकलेगा उससे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि क्यों क्या कैसे हमने एसोसिएट किया था चीज को। ओके, सो हैव अ नाइस डे अहेड, we'll meet tomorrow. Tomorrow we'll meet on Monday. Monday, not tomorrow. My bad. Monday. छुट्टी है 2 दिन. Enjoy happy weekend
and we'll meet on Monday.